السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ QMax Builders and Developers آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax Builders and Developers، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔ آنے والی نسلوں کو بہتر اور آلودگی سے پاک زندگی کی فراہم کے لیے EV پالیسی کا نفاذ۔ حیدرآباد میں دلی جیسے حالات نہ ہوں، سرکاری ملازمین کو الیکٹرک گاڑیوں کی خریدی پر 20% رعایت۔ اسمبلی میں وزیر ٹرانسپورٹ کا اعلان۔ اراضی ٹرانسمیشن پالیسی کے تحت صنعتی علاقوں کو رہائشی علاقوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر سریدر بابو کی وضاحت، حفظان صحت کے مسائل پیدا ہوں گے، حکومت محتاط رہے، زمین کی ٹیسٹنگ کی جائے، اکبر اویسی کا مشورہ۔ یہ ملک سب کا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں،
कोई इसके ठेकेदार बनने की कोशिश न करें, अकबर ओवैसी का इंतबाह। SIR पर मुअस्सर अमलावरी जरूरी, हुकूमत को फ्लोर लीडर मजलिस का मशवरा। और तेलंगाना असेंबली गौरव नहीं कौरव सभा बन गई है। KCR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बौखलाहट, असेंबली आने पर क्या होगा, KTR का खिताब। अल्फाज की अदायगी के दौरान मोहतात रहें, पार्टी कैडर को हरीश राव का मशवरा। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। असेंबली में EV पॉलिसी और RTC से मुतालिक सवालात के जवाब में वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि आने वाली नस्लों को बेहतर और आलूदगी से पाक जिंदगी फराहम करने के मकसद से हुकूमत ने जियो नंबर 41 के तहत EV पॉलिसी नाफिज की है। उन्होंने बताया कि रवां साल 1 लाख से जायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त हुईं और EV गाड़ियों की रेंज 150 किलोमीटर से बढ़कर 500 किलोमीटर तक पहुंच गई है। वजीर ने कहा कि चार्जिंग स्टेशनों की तादाद बढ़ाने के लिए दफातर, गेटेड कम्युनिटीज, तालीमी इदारों, कलेक्ट्रेट्स, सयाहती मकामात और रेडको के जरिए स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। हुकूमत को तकरीबन 9 करोड़ रुपए के माली नुकसान के बावजूद EV पॉलिसी जारी रखी जा रही है। सरकारी मुलाजिमीन को EV गाड़ियों की खरीद पर 20% रियायत दी गई है। उन्होंने बताया कि रियासत में EV गाड़ियों का इस्तेमाल 0.3% से बढ़कर 2% तक पहुंच गया है। आलूदगी पर काबू पाने के लिए CNG, LPG और EV गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है ताकि हैदराबाद में दिल्ली जैसी सूरत हाल पैदा न हो। RTC के हवाले से वजीर ने कहा कि रियासत में 9,000 से ज्यादा बसें हैं। PME ड्राइव स्कीम के तहत हैदराबाद को मरहलेवार 2,800 इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी, जबकि वरंगल और निजामाबाद में भी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की सहूलत, कारकुनों की फलाह और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है और आइंदा दिनों में RTC में नई बसें और रोजगार के मौक़े फराहम किए जाएंगे। वज़ीर सनअत श्रीधर बाबू ने कहा कि आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए हिल्ट पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है। वज़ीर श्रीधर बाबू ने असेंबली में हिल्ट पॉलिसी पर बहस के दौरान उन्होंने ये बातें रखीं। उन्होंने कहा कि हिल्ट पॉलिसी को महज सादा ज़मीन के तबादले के तौर पर देखा जा रहा है। अगर इस पर तामीरी तनकीद की जाए तो हम इसे खुशदिली से कबूल करेंगे। हिल्ट पॉलिसी के जरिए सनती इलाकों को रिहायशी इलाकों में तब्दील किया जाएगा। ORR के अंदरूनी इलाकों को आलूदगी से पाक बनाने के लिए वज़ीर आला मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। शहर के अंदर मौजूद सनतों को ORR के बाहर मुंतकिल किया जाएगा। ये कोई नई पॉलिसी नहीं है जिसे हम अचानक नाफिज कर रहे हों। इस सिलसिले में पहले ही वसी पैमाने पर मुशावरत की जा चुकी है। वसाइल की फराहमी के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। हिल्ट पॉलिसी के बारे में मुकम्मल मालूमात के बगैर ही हुकूमत पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सनती इदारों की ज़मीनों को सरकारी ज़मीनें करार देकर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। GOMS नंबर 19 के तहत लीज पर दी गई ज़मीनों पर हुकूमत को मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। ये GO पिछली हुकूमत ने जारी किया था। अगर ज़मीन के मालिकान रज़ाकाराना तौर पर आगे आएंगे तो ज़मीनों को कन्वर्ट किया जाएगा। शहरियों को आलूदगी से बचाना ही हमारा बुनियादी मकसद है। हमारी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाती है कि जो भी फैसला लिया जाए वो माकूल, साइंसी और मिंतकी बुनियादों पर हो। हमारी हुकूमत मुस्तक़बिल को मद्देनजर रखकर फैसले करती है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सनती और फैक्ट्रीज की अराजियात को रिहायशी इलाकों में तब्दील करने से मुताल्लिक़ खबरदार किया है। असेंबली में अराजी ट्रांसमिशन पॉलिसी और तेलंगाना राइजिंग पर खिताब करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कदीम कंपनियों और फैक्ट्रीज की अराजियात को रिहायशी इलाकों में तब्दील करना मुज़िर होगा। इससे हिफ़्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा होंगे। अकबर ओवैसी ने मुख्तलिफ बीमारियों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर भी केमिकल्स की वजह से आलूदा हुआ है। उस्मान सागर और हिमायत सागर को भी ऐसे हालात का सामना है। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत भी साबिका BRS हुकूमत के नक्श कदम पर चल रही है। मुमकिन है कि साबिका हुकूमत के कर्ज की वजह से हुकूमत आराजियात का इस्तेमाल कर रही है।
अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर फैक्ट्रीज और केमिकल कंपनियों की आराजियात का रिहायशी इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहां की आराजी की टेस्टिंग की जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बच्चा मजदूरी के खिलाफ सख्त इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स को जारी रखने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना राइजिंग में मजलिस हुकूमत के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना राइजिंग करेगा तो मुल्क भी राइज होगा। इसके लिए मुल्क के हर शहरी को इसका हिस्सेदार बनाया जाए। अगर किसी शहरी को छोड़ दिया गया तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। इस मुल्क में सबसे पसमानदा अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तेलंगाना राइजिंग का हिस्सेदार मुसलमानों को भी बनाएं, हर तबके को इसका हिस्सेदार बनाएं। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कहते हुए सियासत करते हैं। This government is land, going around land, sir. नहीं, but I really do understand. I mean, अब क्या करेंगे सर? अब है वैसे हालात, सर. Going further ahead, sir. वही बोला ना सर, मैं इनकम नहीं है, फिर आप लोगों का डेवल्यूशन फंड में वो 2 लाख हम दे रहे हो, उसमें से दे रहे नहीं बोल के अब मजबूर हो गए। अब क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट तो चलाना है ना सर, गवर्नमेंट तो चलाना है ना सर। पैसे कहां से लाएंगे? तनख्वाह कहां से देंगे? रिक्रूटमेंट कहां से करेंगे? पेंशन बेनिफिट्स कहां से देंगे? ये लोग बोल रहे पेंशन बेनिफिट्स नहीं दे रहे, ये लोग बोल रहे रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, ये लोग बोल रहे जॉब कैलेंडर नहीं आ रहा। अरे सब आया तो कितना पैसा होना, पैसा आप दे दो, हमारा यहां से दे देंगे ये लोग। सही है ना सर? सर सर थोड़ा बहुत ऐसा होते रहा तो जरा अच्छा रहता सर। नहीं तो ऐसे चलते रह रहा, ऐसा होता सर। कोई तो भी जरा सो जाते, कोई तो रेस्ट लेते, थोड़ा ऐसा होते रहा तो अगेन एवरीबॉडी गेट्स चार्ज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब ये नहीं सर, आपको भी दिए उन्होंने, बहुत पैसे दिए आपको, इनको भी सर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बीजेपी को बहुत दिए सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बीजेपी को बहुत पैसा दिए सर। वो कॉन्ट्रैक्टर सबसे ज्यादा दिए सर, जबरदस्त, और दूसरे कंपनियों से भी दिए सर। सर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स सर, अगर हम स्कोर आउट ऑफ 1000 अगर लेते हैं सर, तो स्कोर नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं? बैंक गारंटी आपको बॉन्ड्स नहीं मिले सर, बॉन्ड्स भी मिले और जेम्स बॉन्ड फंड भी मिला सर। नॉट ओनली बॉन्ड सर, जेम्स बॉन्ड फंड भी मिला इनको, बहुत मिला सर इनको बॉन्ड सर। इट इज ऑन रिकॉर्ड। बॉन्ड मिला नहीं मिला? बॉन्ड मिला नहीं मिला? बोलो आप, बॉन्ड मिला नहीं मिला आपको? इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिला आपको, और मिलने के बाद पैसा भी लेते हैं और हमारे खिलाफ बोलते भी है। ये क्या है सर? ये बॉन्ड मिलने के बाद इतना एजिटेशन। इस शहर में, इस रियासत में, इस मुल्क में बसने वाले किसी एक को भी अगर छोड़ देते हैं, उसको तरक्की का हिस्सा नहीं बनाएंगे, डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो फिर ना मुल्क तरक्की कर सकेगा, ना रियासत तरक्की करेगी। तो आज मैं आपसे दरखास्त करूंगा सर, आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप तेलंगाना राइजिंग का हिस्सा मुसलमान को भी बनाइए। तेलंगाना की तरक्की के हिस्सेदारी में मुसलमानों को भी उनका हक दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मुसलमानों को दीजिए, मैं ये कहूंगा कि मुसलमानों को भी हिस्सेदार बनाइए, हिंदू को भी हिस्सेदार बनाइए, ब्राह्मण को भी हिस्सेदार बनाइए, दलित को भी हिस्सेदार बनाइए, बीसीस को भी हिस्सेदार बनाइए, क्रिश्चियन को भी हिस्सेदार बनाइए, पारसी को भी हिस्सेदार बनाइए। हम नफरत की सियासत पे यकीन नहीं रखते, लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हुए इस सोसाइटी को बांट कर सिर्फ अपनी सियासी दुकान को चमकाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई आए, एक माथे पे तिलक लगाने वाले को भी उसका हक मिले, सर पे टोपी पहनने वाले को भी उसका हक मिले। हम चाहते हैं कि एक सिख को भी पगड़ी पहनने वाले को भी उसका हक मिले, हर किसी को उसका हक मिले, और सब मिलकर हम काम करेंगे तो इस रियासत को हम खुशहाली की तरफ लेकर आगे बढ़ाएंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे तो यह मुल्क आगे बढ़ेगा। हम सब मिलकर अगर एकजुट होकर अगर काम करेंगे तो मुल्क का नाम रोशन होगा और तेलंगाना रियासत एक तरक्की के बुलंदियों को छुएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि पुराने शहर की तरक्की भी होगी। और आखिर में यह कहूंगा कि मूसी की पोल्यूशन, मूसी की तरक्की के लिए बराबर हम ताउन करेंगे कि मूसी की गंदगी खत्म होगी तो वहां के अतराफ बसने वालों की जिंदगियों में भी बेहतरी आएगी और उनकी लाइफ स्पैन भी बढ़ेगी। होप दैट कि दिस वुड
this would be considered. Charminar pedestrianization project is there, we need to complete. Charminar दवाखाना है, इसको complete करिए सर. गोलकुंडा फोर्ट पे केबल ब्रिज के लिए हम बोले उसको लाइए. टूरिज्म को इंप्रूव करिए और हम ये काम करेंगे, हैदराबाद को तरक्की देंगे तो हम सब को एक फायदा ये होगा कि ब्रांड हैदराबाद मजबूत होगा और ब्रांड हैदराबाद की मजबूती के जरिए इन्वेस्टर्स आएंगे. वी आर द आईटी हब, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब है. आज हमको और इसको आगे बढ़ाना है, कंजेशन ऑफ ट्रैफिक को दूर करना है. और मैं हुकूमत से फिर से कहूंगा कि हमारा मुकम्मल ताउन आपके साथ रहेगा. चलिए आप और हम मिलकर इस रियासत को उन तरक्कियों की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं जो बंगारू तेलंगाना का वादे करने वाले नहीं कर सके. चलिए यू एंड अस विल राइज, विल गो विद यू एंड तेलंगाना विल राइज एंड इंशाल्लाह वी विल हैव खुशहाली इन तेलंगाना. द फार्मर्स विल बी हैप्पी, द स्टूडेंट्स विल बी हैप्पी, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी हैप्पी एंड द नेशन विल लव ईच अदर एंड बी हैप्पी विद ईच अदर. सर, आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सर, थैंक यू वेरी मच. असेंबली में वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बताया कि रियासत में 1 करोड़ 80 लाख गाड़ियां मौजूद हैं और 550 पोल्यूशन टेस्टिंग स्टेशन काम कर रहे हैं. वक्फे सवालात में जवाब देते हुए उन्होंने ऐलान किया कि पहले मरहले में 15 ऑटोमेटिक व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं. मजमूई तौर पर 37 स्टेशन बनाए जाएंगे. वजीर ने कहा कि 15 साल से जायद पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है, जिसमें आरटीसी और सरकारी गाड़ियां भी शामिल हैं. मुसाफिरों की निजी गाड़ियों को ग्रीन टैक्सेस के तहत कुछ रियायत दी गई है. ताहम इस मामले को मरकजी वजीर नितिन गडकरी की तवज्जो में लाया गया है क्योंकि ये रियायत सख्त कार्रवाई में रुकावट बन रही है. उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में शफाफियत के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं. इसके अलावा रफ्तार पर काबू पाने के लिए कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं. वजीर ने कहा कि हैदराबाद में पानी के टैंकर्स, स्कूल बसों, आईटी और फार्मा कंपनियों की गाड़ियों से आलूदगी फैलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वाटर बोर्ड की गाड़ियों को फिटनेस नोटिस जारी किए जाएंगे. रियासती वजीर माल पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि साबिका हुकूमत के दौर में गैर साइंसी तरीके से की गई मंडल रेवेन्यू डिवीजन्स और अजला की तकसीम को दुरुस्त किया जाएगा. असेंबली में सवाल का जवाब के दौरान उन्होंने बताया कि माजी की गलत तकसीम के बायस एक ही हल्का इंतखाब के मंडल मुख्तलिफ अजला में शामिल हो गए थे. वजीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत नए मंडलों और डिवीजन्स की जरूरत को भी मद्देनजर रख रही है. वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीना इस मामले पर गौर करेगी और एक जामे रिपोर्ट तैयार करके असेंबली में बहस के बाद तमाम फरीकैन की मंजूरी से अजला की तंजीम नौ की जाएगी. नायब वजीर आला व वजीर तवानाई मल्लू भट्ट विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि सिंगारणी इलाकों के तमाम अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की मकलूआ जायदादों को मार्च 2026 तक मुकम्मल तौर पर पुर किया जाएगा. असेंबली में सिंगारणी पर बहस के दौरान उन्होंने बताया कि 32 डॉक्टरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 176 पैरामेडिकल अमले की अंदरूनी तकर्री का अमल जारी है. उन्होंने कहा कि रामागुंडम में PPP मॉडल पर कैथ लैब कायम की जा रही है, जिसका आगाज 75 दिनों में होगा. रिटायर्ड मुलाजमीन को सिंगारणी अस्पतालों में अद्वियात की सहूलत, CPRMS स्कीम और टर्मिनल बेनिफिट्स फराहम किए जा रहे हैं. भट्ट विक्रमार्का ने वाज़ेह किया कि सिंगारणी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ और मजदूरों की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है. उन्होंने ऐलान किया कि सिंगारणी की बका और मजदूरों के मसाइल पर असेंबली इजलास के बाद 10 दिनों में आला सतही इजलास मुनक्किद किया जाएगा. कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने SIR को लेकर तशवीश का इजहार किया है. असेंबली में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केरला, बिहार और मगरबी बंगाल में बड़ी तादाद में वोटर्स के नाम हज़फ किए गए हैं. मुसलमानों को मनसूबाबंद तरीके से वोट के हक से महरूम किया जा रहा है. अकबर ओवैसी ने बताया कि अहल वोटर्स को फहरिस्त राय दहिंदगान से निकाला जा रहा है. साबिक में भी SIR किया गया था, लेकिन इस बार जिस तरीके से SIR पर अमल किया जा रहा है, इससे मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है. उन्होंने कहा कि एक BLO किस तरह से एक शख्स की शहरियत का तयन कर सकता है. उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शख्स किसकी वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता. उन्होंने कहा कि किसी भी अहल वोटर को फहरिस्त से निकाला नहीं जाना चाहिए. SIR के मसले पर हुकूमत से इजलास तलब करने का भी उन्होंने मुतालबा किया. अकबर ओवैसी ने कहा कि यह मुल्क सबका है, कोई एक शख्स इस मुल्क का ठेकेदार नहीं है. कायदे मजलिस की हकीकत बयानी पर BJP के फ्लोर लीडर चिराग पा देखे गए और एहतजाज करने की कोशिश की. SIR exercise in the third phase covering Telangana and other states कि आज जिंदगी के हर शोबे में पसमानदा रहने वाले मुसलमान जो इस मुल्क के शहरी है और इस मुल्क के वफादार हैं,
لیکن آج ان کو اپنے حق رائے دہی سے محروم کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک منصوبہ بند انداز میں, اور ویری رائٹلی اٹ ہیز بین سیڈ by the leader of Congress, Mr. Rahul Gandhi also, where he had shown and projected with a PowerPoint presentation کہ کس طریقے سے ووٹ کی چوری ہو رہی ہے. کہ ووٹ کی چوری کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو جینیون ووٹرز ہیں ان کے ووٹ کو دینے کے حق کو سے محروم کر دے رہے ہیں. In many states sir, یہ SIR میں there are Aadhaar card, passport, birth certificates and all. I mean, an individual who is 40 years old is supposed to have a birth certificate. In many states, sir, the state governments have issued an order of not issuing the birth certificates. If the birth certificates are not issued, how will they establish? سر آج سے کئی زمانہ پہلے گاؤں میں برتھ ہوتے تھے اور وہاں پہ کوئی برتھ سرٹیفکیٹس نہیں رہتے تھے. دیر آر مینی ادر ایشوز سر, اینڈ دا کانگریس اینڈ دا لیڈر آف کانگریس راہل گاندھی صاحب اینڈ آل دا اپوزیشن لیڈرز اینڈ لیڈرز فرام آل اپوزیشن پارٹیز ہیو ریزڈ دیئر کنسرن ریگارڈنگ دس SIR سر. دس SIR is nothing but an indirect way of CAA and NRC. Sir, when I say that کہ جو بھی اس ملک کا شہری ہے اور ایلیجبل ہے ووٹ کرنے کے لیے, اس کے ووٹ کے حق کو چھینا نہیں جانا چاہیے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستانی کو ایک بنگلہ دیشی کو آپ لا کر اس کو ووٹ دینے کا حق دے دیں. سر یہ دس از آل رانگ. وین بہار میں سر دس SIR had happened, not a single Muslim name or in Bihar was found to be from Bangladesh or from Pakistan or elsewhere sir. یہ صرف ایک پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے نفرت پھیلانے کا. ہندو مسلمان, کوئی بھی ایک ٹھیکیدار نہیں ہے اس ملک کا کہ وہ کہہ دے کہ ہم اس ملک کے ہیں دوسرے اس ملک کے نہیں ہیں. یہ ملک سب کا ہے. یہ ملک ہندو کا ہے, یہ ملک مسلمان کا ہے, یہ ملک عیسائی کا ہے, یہ ملک پارسی کا ہے, یہ ملک گاڈ اللہ بھگوان کو نہیں ماننے والے کا بھی ہے. یہ ملک ہر کسی کا ہے. کوئی ایک ٹھیکیدار نہیں ہے اس ملک کا. یہ ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ اپنی جاگیر کو چلاتے رہے, جیسا چاہیں بولتے رہے. ہم مسلمان بھی اس ملک کا حصہ تھے, ہے اور رہیں گے. ہم اس ملک میں وفاداری کے ساتھ کھڑے تھے, ہیں اور رہیں گے. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے پھر سے مطالبہ کروں گا کہ SIR آنے والا ہے. SIR کے لیے جو بھی ضروری انتظامات کرنا ہے کریے, اور میک شور کریے کہ کوئی بھی ایلیجبل ووٹر کا ووٹنگ رائٹ اس سے نہ چھینا جائے. سر تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپارچونٹی. محکمہ فائر سے متعلق سوالات کے جواب میں وزیر پونم پربھاکر نے اسمبلی کو بتایا کہ ریاست میں اب تک 8,861 آتشزدگی کے واقعات پیش آئے, جن میں 879 کروڑ روپے کی املاک کو نقصان ہوا اور 163 افراد جاں بحق ہوئے. انہوں نے سنگاریڈی کے سگاچی حادثے اور چار مینار کے قریب ایک ہی مکان میں 17 افراد کی ہلاکت کا بھی حوالہ دیا. وزیر موصوف نے بتایا کہ ریاست میں 138 فائر اسٹیشنز اور 9 آؤٹ پوسٹ کام کر رہے ہیں, جبکہ 544 فائر سیفٹی گاڑیاں دستیاب ہیں. مزید 58 نئے فائر اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں اور کئی علاقوں میں فائر اسٹیشنز کا درجہ بڑھایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ بلند عمارتوں, گیٹڈ کمیونٹیز, اسپتالوں, صنعتوں اور تعلیمی اداروں میں فائر سیفٹی سے متعلق 13,658 بیداری پروگرام منعقد کیے گئے ہیں. آتشزدگی سے بچاؤ اور حادثات کے دوران تحفظ سے متعلق تربیت دی جا رہی ہے. وزیر نے عوام سے احتیاط کی اپیل کی. BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا ہے کہ آج اسمبلی عزت کی نہیں بلکہ کسی کو بے عزت کرنے کی جگہ میں تبدیل ہو گئی ہے. KTR نے کہا کہ ناشائستہ الفاظ کا ایوان اسمبلی میں استعمال کیا جا رہا ہے, اس سے اسمبلی کا وقار متاثر ہوا ہے. ایسی اسمبلی میں KCR کو آنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. KCR کی ایک پریس کانفرنس سے نیند حرام ہو گئی ہے اور جب وہ اسمبلی آئیں گے تو نہ جانے کیا ہوگا. سابق وزیر اور BRS لیڈر ہریش راؤ نے پارٹی کے کیڈر کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رقم اور عہدہ دوبارہ حاصل کیے جا سکتے ہیں, لیکن اگر لفظوں کی لغزش ہو گئی تو اسے سدھارنا مشکل ہے. پارٹی کے لیڈرز اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ الفاظ کی ادائیگی کے دوران محتاط رہیں.
तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने समाजी तेलंगाना के हुसूल के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। पार्टी दफ्तर में मुलाजिमीन, यूनिवर्सिटी, तलबा और दूसरी तंजीमों के कारकुनों से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि रियासत में एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो तेलंगाना के वजूद के लिए काम करे। कविता ने उनकी हिमायत करने पर मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनों और जेएसी नुमाइंदों से इजहार तशक्कुर किया। इन कारकुनों को कविता को मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया। कुल हिंद सनती नुमाइश में मंगल के दिन यौम ख़वातीन कामयाब रहा। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें डीसीपी शिल्पावली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश करके दाद व तहसीन हासिल की। अलावा ज़ी नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का कारोबार भी ज़बरदस्त रहा। लोग खरीदारी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग बड़े जोश खरोश से नुमाइश की तमाम स्टॉल्स का दिलचस्पी से मुशाहिदा कर रहे हैं। वो नुमाइश घूमने और फिरने के बाद वहाँ के रेस्टोरेंट्स, होटल्स में स्नैक्स वगैरह के जायकों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जबकि बच्चे अपने खेलकूद के लिए झूलों और दूसरी सहूलतों से इस्तेफादा कर रहे हैं। बच्चों के साथ बड़ों की भी दिलचस्पी खासी रही। वो घर के साजो सामान, क्रॉकरी और खूबसूरत और पुरकशिश मलबूसात की तलाश में एक स्टॉल से दूसरी स्टॉल में अपनी पसंद की अशिया को तलाश कर रहे हैं। बहरहाल मजमूई तौर पर नुमाइश कामयाब और सस्ती तफरीह है। इसमें शक नहीं कि नुमाइश में दाखिले का टिकट कुछ ज्यादा ही है। महबूब नगर में एक तवील इंतजार के बाद 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले हज हाउस और उर्दू घर के काम को अम्बेडकर समिति के कारकुन और चंद अशरार की मुदाफ़अत पर रोक दिया गया। शहरियान महबूब नगर के एक देरीना मुतालबे की तकमील करते हुए इस प्रोजेक्ट को रकमी मंजूरी दी गई और कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से खुदवाई का काम शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही खुदवाई शुरू हुई, इस मुकाम पर हज हाउस और उर्दू घर की तामीर की मुखालिफत करते हुए कई लोग आ गए, जबकि हुकूमत की अलॉट करदा आराजी पर हुकूमत के रकबी बजट के जरिए यहाँ तामीराती काम शुरू किया गया। लेकिन चंद मुट्ठी भर अफराद ने इस आराजी पर तामीराती कामों के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बायस नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल को काबू में करने टू टाउन पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद एजाजुद्दीन की क़यादत में पुलिस फोर्स पहुंच गई और इसने काम को रुकवा दिया और एहतजाज करने वालों को मुंतशिर कर दिया। मुखालिफत करने वालों का यह इस्तदलाल रहा है कि आराजी मुत्तसिल अम्बेडकर भवन को दे दी जाए, जबकि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में सन 2000 में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने उर्दू घर और शादी खाने के लिए यह आराजी अलॉट कर दी थी। चूंकि यह आराजी खाली रही, इसके एक हिस्से पर अम्बेडकर भवन के लिए जगह मख्तस की गई। उर्दू घर के लिए मख्तस करदा आराजी के एक हिस्से पर अम्बेडकर भवन को जगह दी गई। अब अम्बेडकर भवन की समिति ने सारी आराजी उनके हवाले करने का मुतालबा करते हुए तामीरात के काम को रुकवा दिया। शहरियान का एक देरीना ख्वाब भी अब चिकनाचूर हो गया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस की तरफ से एक केस में गिरफ्तार किए गए मुलजिम को अदालत ने 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा का साकिन पेशे से मजदूर सत्तार कुरैशी महलिक हथियार के साथ मुश्तबा हालत में घूम रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया था। नवी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मंदामरली ने सत्तार कुरैशी को 15 दिन कैद की सजा सुनाई। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फर्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि जिंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब हो। इस मुकद्दस सफर को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीजिया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, वीआईपी शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल वीआईपी नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। आने वाली नस्लों को बेहतर और आलूदगी से पाक जिंदगी की फराहम के लिए ईवी पॉलिसी का निफाज। हैदराबाद में दिल्ली जैसे हालात न हो, सरकारी मुलाजमीन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी पर 20% रियायत। असेंबली में वजीर ट्रांसपोर्ट का ऐलान। आराजी ट्रांसमिशन पॉलिसी के तहत सनती इलाकों को रिहायशी इलाकों में तब्दील किया जाएगा। रियासती वजीर श्रीधर बाबू की वजाहत। हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा होंगे, हुकूमत मोहतात रहे, जमीन की टेस्टिंग की जाए, अकबर ओवैसी का मशवरा। ये मुल्क सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं, कोई इसके ठेकेदार बनने की कोशिश न करें, अकबर ओवैसी का इंतबाह। SIR पर मुअस्सर अमलावरी जरूरी, हुकूमत को फ्लोर लीडर मजलिस का मशवरा। और तेलंगाना असेंबली गौरव नहीं कौरव सभा बन गई है। KCR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बौखलाहट, असेंबली आने पर क्या होगा, KTR का खिताब। अल्फाज की अदायगी के दौरान मोहतात रहें, पार्टी कैडर को हरीश राव का मशवरा। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।